Dear students, you are already aware of the fact that in order to test the pair of hypotheses of independence versus association, we make use of the chi-square test. I have already told you that how for a particular real life problem, if you are given with two categorical variables, and for those variables if you have certain categories, how to enter the data under the contingency table in SPSS. Now you will learn the procedure to follow the chi-square test of independence in SPSS. So students, I am reading the same problem for you that we have taken up earlier and for which we have already entered the data into SPSS. The problem is that for the given contingency table, the information about residential area and the disease status are being shown. So for this particular contingency table where we have two variables, one is a residential area with two categories, urban and rural, and for the disease status we again have two categories, disease versus no disease. You are required to test at 5% level of significance that there is an association between the residential area and the disease status. So students, you have learned how to enter the data for the very problem. You have located the row position and the column position along with the frequencies that are the counts that are being appeared. So students, ये आपके सामने है. For example, 84, that was a count for which you have identified that it is on the position of row 1 and column 1. So you are already aware of the fact. So if we have this kind of contingency table, तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है रो कॉलम फॉर्म में और किस तरह से डाटा एंटर करना है. सो वंस यू हैव एंटर्ड द डाटा, सो आपके सामने ये एक SPSS का इंटरफेस विंडो आएगी. Students, I am assuming that you have already entered the data for the row variable, for the column variable that are depicting the position or location of the observed count along with the frequencies. So as far as the procedure is concerned, students, सबसे पहले आपको टॉप मोस्ट बार जो है SPSS की उसमें क्लिक करना है डाटा पे, और इस डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी. उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने क्लिक करना है वेट केसेस को. अब ये हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ऑब्जर्व्ड काउंट्स हैं, वो हमारे वेट्स हैं. उन वेट्स को यू वुड हैव टू इन्फॉर्म द SPSS दैट यू हैव हैड दोज वेट्स अंडर द फ्रीक्वेंसी वेरिएबल. वंस यू हैव डन दैट स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक और विंडो अपीयर होगी. उस विंडो में आपको वो तीनों वेरिएबल नजर आ रहे हैं जो कि आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं इन SPSS, रो, कॉलम एंड फ्रीक्वेंसीज. अगर आप राइट साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आ रहा है डू नॉट वेट केसेस. दैट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन अंडर SPSS, बट एज वी नीड टू वेट दिस केसेस, जो हमारे पास वेट्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं या काउंट्स हैं, उनको हम डिफाइन करने चाह रहे हैं. सो वील बी क्लिकिंग ऑन टू वेट केसेस बाय. सो स्टूडेंट्स, ये करेंगे जब आप क्लिक वेट केसेस बाय पे, तो आपके पास ये इनेबल हो जाएगी ऑप्शन. इधर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका वेरिएबल अपीयर हो रहा था फ्रीक्वेंसी, उसको आप यूजिंग दिस एरो बटन जिसका फेस राइट साइड पे था क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी वेरिएबल विल बी मूव्ड ऑन टू द राइट हैंड साइड. वंस यू आर डन विद दैट, you will be clicking on to the OK button. That means your weights are being taken by the SPSS. So students, once you are done with defining the weights or the frequencies or the counts, अगला procedure ये है कि आपको टॉप मोस्ट विंडो पे SPSS की एनालाइज बटन को पुश करना है. Once you are done with that, you will be selecting the option of descriptive statistics. इस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो रही है. इसमें से आप लेंगे क्रॉस टैब्स. एज यू कैन ऑब्जर्व कि जो आपका कॉन्टिजेंसी टेबल है यहाँ पे क्रॉस टैबुलेशन हुई हुई है, क्योंकि एक साइड पे आपकी वेरिएबल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं रो फॉर्म में, और दूसरी तरफ आपके पास कॉलम में भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर काउंट्स हैं. सो वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन टू क्रॉस टैब्स बटन स्टूडेंट्स,
ये एक विंडो आपके सामने अपीयर होगी। अब आपने क्या करना है, यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड द फ्रीक्वेंसीज एज वेट्स। अब आपने ये जो आपका रो वेरिएबल है, इस बटन एरो के थ्रू आप इसको रो के अंडर लेके आएंगे, और ये जो आपका कॉलम वेरिएबल है जहां आपने कॉलम पोजीशन दी हुई है, इसको इस एरो के थ्रू आप कॉलम के अंडर लेके आएंगे। वंस यू हैव डन दैट स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने रो अंडर रो अपीयर हो रहा है और कॉलम पोजीशन अंडर कॉलम अपीयर हो रही है। स्टूडेंट्स, ये आप रियलाइज कर सकते हैं कि मैंने क्यों इनको रो और कॉलम के नेम दिए थे, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि रो इज डिपिक्टिंग द रो पोजीशन एंड कॉलम इज डिपिक्टिंग द कॉलम लोकेशन ऑफ द काउंट। अब स्टूडेंट्स, आपके राइट साइड पे बहुत से बटन्स नजर आ रहे हैं। यू विल बी क्लिकिंग ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स बटन। वंस यू हैव डन दैट, तो आपके पास एक और विंडो अपीयर हो रही है इस फॉर्म में। यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस नजर आ रही हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द काई स्क्वायर। सो आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया, यानी टिक किया इसके ऊपर, फिर आपने कंटिन्यू का बटन दबाया और उसके बाद यू हैव क्लिक्ड ऑन टू द ओके बटन। So students, this was the entire procedure to perform the test of independence or association using the chi-square onto SPSS.